Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about the third type of insurance, that is fire insurance. In the previous videos we have covered life insurance, types of life insurance, then marine insurance, types of marine insurance, and today in this video we will discuss what is the meaning, what do you mean by fire insurance, and the first 4 types of fire insurance policies. Okay. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be very useful. Fire insurance, obviously chapter number 4, business services, 12th OCM. Okay, so let's get started. Meaning, fire insurance is a contract, or you can say is an obviously insurance contract is an agreement whereby the insurer in return for a consideration undertakes to indemnify the insured against the loss of property due to fire. Okay, तो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगेन इट्स अ अग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन मतलब ऑब्वियस है, प्रीमियम की बात हो रही है यहाँ पे, अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर, इंडेमनीफाई मतलब उनको कॉम्पनसेट करने के लिए या उनको लॉस का जो भी होता है फायर के वजह से उनको वो कॉम्पनसेट करती है. किसको? इंश्योर्ड को. इंश्योर्ड मीन्स द पर्सन हु टेक्स द पॉलिसी अगेंस्ट द लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर. सो इट्स वेरी क्लियर चिल्ड्रन, फायर इंश्योरेंस इज अ agreement whereby the insurer in return for a consideration undertakes to indemnify the insured against the loss to property due to fire. ठीक है. Any property which is subject to damage by fire can be insured against fire. Obviously अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ड्यू टू फायर, आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. The loss due to fire, lightning and explosion is also covered by the fire insurance. अब फायर इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है? ऑब्वियसली एक तो फायर है, लाइटनिंग है, एक्सप्लोजन इज ऑल्सो टेकन और कवर्ड इन द फायर इंश्योरेंस. सो बेसिकली वेरी क्लियर, फायर इंश्योरेंस अगेन is taken to protect the subject matter or the property due to fire, lightning and explosion. ठीक है. So this is a clear or very simple meaning of fire insurance. Let's go to the types of fire insurance policies students. The first one which we are going to discuss is valued policy. Under this policy, value of the subject matter of insurance is agreed upon at the time of making a contract. मतलब जब आप पॉलिसी ले रहे होते हो तो तब आप सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू होता है वो अग्री करते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ. ठीक है. अंडर दिस पॉलिसी ऑब्वियस है, इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर. इंश्योरर मतलब ऑब्वियस है, इंश्योरेंस कंपनी को एक स्पेसिफिक अमाउंट या वैल्यू पे करना होता है जितना भी लॉस हुआ है ड्यू टू फायर. Valued policy is taken for those goods whose value become difficult to calculate in case of loss by fire. अब वैल्यूड पॉलिसी क्यों लिया जाता है? ओके, ऑब्वियसली इट इज़ टेकन फॉर दोज गुड्स जिसका आप वैल्यू नहीं लगा सकते, या अगर आप कैलकुलेट भी करते हो उस पर्टिकुलर गुड्स का जो वैल्यू है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट इट. अगर आग लग जाती है या इन केस ऑफ लॉस बाय फायर, जैसे कि कुछ आर्ट वर्क है या स्कल्पचर्स है, पेंटिंग से आप उसका कैलकुलेट कैसे करोगे? जब आग लग जाती है इन पर्टिकुलर गुड्स को, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू. तो वैल्यूड पॉलिसी इसीलिए लिया जाता है, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर अबाउट योर सब्जेक्ट, मतलब आपका जो भी गुड्स है को भी अगेंस्ट वॉट यू वॉन्ट टू सिक्योर इट अगेंस्ट फायर. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट वन, वैल्यूड पॉलिसी. लेट्स गो टू द सेकेंड, एवरेज पॉलिसी. It is a policy which contains an average clause. मतलब एक मिड वाला, मतलब एवरेज वाला क्लॉज यहाँ फॉलो किया जाता है. If the subject matter is not insured as per the exact market value or it is undervalued, please understand this line students. If the subject matter is not insured as per the exact market value, अगर आपने अपना जो भी सब्जेक्ट मैटर है, भी प्रॉपर्टी है, गुड्स है, जो भी है, उसको आपने मार्केट वैल्यू, एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू से इंश्योर्ड नहीं किया है या उसको आपने अंडर वैल्यू किया है, कम किया है, देन इंश्योरर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, इज लायबल टू पे दैट परसेंटेज ऑफ द लॉस फॉर विच इट इज़ इंश्योर्ड. मतलब इंश्योरेंस कंपनी लायबल हो जाती है कि वो उतना परसेंटेज
लॉस का परसेंटेज इंश्योर्ड को पे करे। अब कैसे करें, कैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। इफ़ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख। अब सपोज वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसका मार्केट वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख रुपीज़, राइट। लेकिन आपने पॉलिसी ली है 1 लाख की अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख, ओके। और सपोज द लॉस इनकर्ड ड्यू टू फायर इज 50,000। जो भी लॉस हुआ है ड्यू टू फायर वो है 50,000, राइट। देन द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे 25,000। दिस इज एज पर द एवरेज पॉलिसी, ठीक है। ये एक पॉलिसी है जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उनको 50,000 लॉस हुआ है, मार्केट वैल्यू जो भी है, आपने जो अमाउंट से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके तहत अगर 50,000 का लॉस होता है तो वो आपको 25,000 ही पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द एवरेज पॉलिसी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द थर्ड वन, स्पेसिफिक पॉलिसी एंड floating policy we will cover again in this video, as I told you first four. Okay, now what is specific policy? In case of specific policy, the property is insured for a definite sum, okay. तो स्पेसिफिकली हम जिसे बोलते हैं, स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम एक डेफिनेट सम के लिए इंश्योर करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट वैल्यू जो कुछ भी हो, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को एक डेफिनेट सम के लिए इंश्योर करते हो। If there is a loss, stated amount will have to be paid by the policy. Stated amount will have to be paid to the policy holder. जितना भी लॉस होता है, जितना भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो भी उस अग्रीमेंट में उस पॉलिसी में लिखा हुआ है स्टेटेड अमाउंट उनको पॉलिसी होल्डर को देना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव मार्केट वैल्यू जो कुछ भी हो, ठीक है। इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर्ड। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक्चुअल वैल्यू जो कुछ भी हो सब्जेक्ट मैटर की, दैट वो मायने नहीं रखता है, वो कंसिडर भी नहीं होता है, ओके। स्पेसिफिक पॉलिसी में आप एक डेफिनेट सम के लिए आपकी प्रॉपर्टी इंश्योर करते हो, अभी लॉस होता है तो उतना इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर को देना पड़ता है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने बोला, एक्चुअल वैल्यू कंसिडर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 75,000, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर्टी, 1 लाख की प्रॉपर्टी है लेकिन इंश्योर्ड कवर हुआ है 75,000 एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज 40,000। मतलब आपने इंश्योर किया है 75,000 का लेकिन लॉस हुआ है 40,000। अब इस केस में द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹40,000 इन फुल एज कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जो भी अमाउंट है, मार्केट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वॉट एवर इट इज़, कंसिडर नहीं होगा। जितने का आपने लिया, मतलब लॉस हुआ है, आप देख सकते हो 40,000 का, उतना ही इंश्योरेंस कंपनी पे बैक करेगी एज अ कॉम्पनसेशन इन स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक है। लेट्स कवर द लास्ट वन ऑल्सो स्टूडेंट्स। फोर्थ है हमारा फ्लोटिंग पॉलिसी, ओके। अब फ्लोटिंग आप समझ सकते हो, यू नो, दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और गोडाउन्स और वेयर हाउसेज। मतलब ये पॉलिसी उन पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर निकाली जाती है जो डिफरेंट लोकेशन में है या गोडाउन्स में है, वेयर हाउसेज में है, कहीं पर भी है। दे आर इन, यू नो, दे आर इन फ्लोटिंग पोजिशन, यू कैन से। आपको यू नो पता नहीं है कि, यू नो, फॉर एग्जाम्पल वेयर आर दे लाइंग एक्चुअली, और इफ यू नो ऑल्सो, बट दे आर नॉट एट द सेम प्लेस, दे आर एट द डिफरेंट लोकेशन। सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। तो जो भी गुड्स डिफरेंट लोकेशन में होते हैं, आपको ये समझ आ जाता है कि वो फ्लक्चुएट होते ही रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी। तो आप एग्जैक्टली स्पेसिफिक पॉलिसी इन जैसे गुड्स पर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट लोकेशन में है, गोडाउन्स में है। तो इसके लिए आप स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं निकाल सकते इन जैसे गुड्स पर। तो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिसी निकालते हैं जिसको हम फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम, एक सम के लिए पॉलिसी ली जाती है, और एक प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। सो दिस पॉलिसी, दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी, इज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो एक ही पॉलिसी आप निकाल सकते हो, जो भी डिफरेंट लोकेशन में आपके गुड्स है या गोडाउन्स में हो, उसके लिए आप ये पॉलिसी निकाल सकते हो। इट्स गुड फॉर बिजनेसमैन ऑल्सो, बिकॉज बाकी सब स्पेसिफिकली आप नहीं कर सकते ना, तो एक बार ही आप निकाल सकते हो अंडर फ्लक्चुएटिंग और नो फ्लोटिंग पॉलिसी, ठीक है।
So this are the few types of fire insurance policies, students. Remaining policies will cover in the next video. So that's it, children, in this video. I hope you will find the video useful and the topics will be clear to you. Keep revising, keep studying. Anything you can put it in the comment section. We will also discuss about this. Okay? Till then, take care, children. Thank you so much.